Hey everyone, welcome to the channel. I am Shweta, your English teacher, and I hope you all are absolutely fine. So today I am here with another one new topic of our spoken English series. Today is the day 3. Day 1 we learn our daily routine, how to describe our daily routine. Day 2 we did what our introduction, how to introduce ourselves. Today I'm here with another one new topic which is really very useful for you, which will help you to frame sentences to improve your fluency, right? So but before that, I'd like to say one thing only, which I told you in the previous video also, and I keep on saying this thing, that you have to practice. Just keep practicing. Now you are enjoying your summer break, so you have enough time. There is not any burden like your homework, homework you have got. I know very well all of you have to complete your this holiday homework, but still you have enough time to utilize, spend your time with the family, but still do not waste the time while scrolling the phone or anything else. Okay, utilize, improve your skills, improve your fluency in English. Okay, and whatever the skills you have, you can improve by using this time. Okay, so चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. टुडे इट इज़ आवर थर्ड डे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल you, those who are new to the channel, it is the day 3rd. We are going to do the new topic today. So in previous 2 videos we have learned about how to describe our daily routine and how to introduce ourselves. 2 videos I have already uploaded. You can go and check. Now today, as it is day 3, I have the new topic. So let's get started with the new topic. So today's topic is let's. Uses of let's. बहुत बार हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को. लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना. लेट्स डू इट, है ना. इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय लेट्स? लेट्स का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कितने इसके यूजेस हैं, क्या है, कैसे इसको यूज करना है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो सारा पढ़ेंगे आज इस वीडियो में. बिफोर दैट लेट मी टेल यू द यूजेस. ठीक है, मेनली क्या क्या यूजेस हैं. मेकिंग सजेशंस, गिविंग एनकरेजमेंट, स्टार्टिंग एक्टिविटी, ऑफरिंग हेल्प और कोऑपरेशन. these are the main uses of let's, है ना. just a minute. Now let's start with the introduction. First of all, how to use let's. Like, what are the uses of let's? Let's is used to make suggestions, proposals, or to invite something to do together. To do together means you yourself will be included in that work, whatever you are offering somebody else to do. Okay, how? Now let's see. If I say let us, let's, is there any difference? No. Let's is a contraction of let us, but whenever we use it formally, we'll be using let us. Informally, we'll use let's, जो हम यूजुअली करते भी है ना. लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग, लेट्स एंजॉय आवर वेकेशन, लेट्स कंप्लीट आवर होमवर्क. तो आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हो कुछ करने के लिए, बट यू योरसेल्फ विल बी इंक्लूड दैट थिंग इन दैट पर्टिकुलर वर्क. ठीक है, जब हम किसी को सजेशन देते हैं, देखो सजेशन के लिए हम क्या पढ़ चुके हैं. सजेशन के लिए हमने शुड भी पढ़ा है ना. शुड भी है. शुड क्या है, एक मॉडल है जिसको हम सजेशन के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट दैट इज अ मॉडल, दैट इज द डिफरेंट टॉपिक. और उसमें आप सामने वाले को एडवाइस देते हैं, सामने वाले को सजेशन देते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो कुछ करने के लिए, सिर्फ
सजेशन नहीं दे रहे हो, आप उसको इनवाइट कर रहे हो, आप खुद भी साथ में वो काम करने वाले हो उसके साथ, तब हम यूज करते हैं लेट्स। ठीक है, आप भी उस काम में इन्वॉल्व होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेट्स प्लस द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स डू, लेट्स रन, लेट्स प्ले। ठीक है, साथ में ऑब्जेक्टिव तो यू नो वेरी वेल ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टडी इंग्लिश टुनाइट, लेट्स वॉच अ मूवी। जब आप सजेशन दे रहे हो या आप एंकरेज कर रहे हो या आप इनवाइट कर रहे हो, एक प्रपोजल क्रिएट कर रहे हो, बट आप उसमें इंक्लूड हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं लेट्स। चलो आप चलते हैं आगे। देखो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर भी तो आप इनवाइट ही कर रहे हो, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन द लेसन। देखो आप हर जगह साथ में हो कि लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, मतलब आप भी वहाँ पर हो इन्वॉल्व। लेट्स बिगिन द लेसन, लेसन को स्टार्ट करते हैं तो आप वहाँ पर इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सामने वाले को बोल रहे हो, आपने सामने वाले को सजेशन दे दिया, आपने सामने वाले को एडवाइस दे दी, आपने सामने वाले को इन्वाइट कर लिया, बट आप उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, तब हम यूज करेंगे लेट्स। ऑफरिंग हेल्प और कोऑपरेशन, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, लेट्स हेल्प देम। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेल्प ऑफर कर रहे हो कि, लेकिन आप साथ में उसके हो। ठीक है, तो कहीं भी लेट आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। लेट का क्या मतलब है कि आप सजेशन, प्रपोजल या इनवाइट जो भी कर रहे हो, आप उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, फाइन, आई होप द मीनिंग इज क्लियर नाउ। Let's versus let us. I've told you informal and common in speech. जब हम informally बात करते हैं, commonly बात करते हैं, then we use let's. Okay, let's get started. Let's start the study. Let's start cooking food. Let's start प्लेइंग, लेट्स प्ले समथिंग इंटरेस्टिंग, है ना। तो इस तरह से लेट अस जब आप यूज करते हो तो वो हमारा एक फॉर्मल वे में आ जाता है। बस यही डिफरेंस है, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, लेकिन ये आपको भी पता होगी कि जब हम फॉर्मली बात करते हैं तब हम कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। जब हम फॉर्मली लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, फॉर्मली सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, तब हम इंटरेक्शन को कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। राइट, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये हर जगह आपका इम्प्लाई होता है कि आप कॉन्ट्रैक्शंस को फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करोगे, यू विल बी अवॉइडिंग दैट। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सेंटेंसेस। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स। लेट्स वेक अप अर्ली टुमारो, कल सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये नहीं आपने सामने वाले को कह दे कि कल तुम जल्दी उठ जाना, यू शुड, है ना, यू शुड वेक अप अर्ली टुमारो। नहीं, आप भी साथ में उठने वाले हो जल्दी, तब आप उसको बोल रहे हो। सो लेट्स वेक अप अर्ली टुमारो, लेट्स गो टू स्कूल ऑन टाइम। चलो दोनों मतलब साथ में जाएंगे, स्कूल टाइम पर चलते हैं, है ना। लेट्स कंप्लीट आवर होमवर्क, चलो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो हर जगह आप साथ में हो। लेट्स रीड अ न्यू बुक, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, लेट्स हेल्प आवर क्लासमेट्स, लेट्स कीप आवर क्लासरूम क्लीन, लेट्स लिसन टू आवर टीचर्स केयरफुली, अपने टीचर्स को ध्यान से सुनते हैं। लेट्स पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, चलो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करते हैं मतलब आप दोनों करने वाले हो या जो भी आपके, 2 or more person कैन बी देयर, है ना। लेट्स प्ले आफ्टर फिनिशिंग आवर वर्क, काम पूरा करने के बाद क्या करते हैं? खेलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे, आज कुछ नया सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आज हम लेट्स सीखते हैं। लेट्स बी काइंड टू एवरीवन, चलिए सभी के लिए हम, सभी के प्रति हम काइंड हो जाते हैं। व्हाट इज काइंड? किसी सामने वाले की फीलिंग को समझना और जितना हो सके उसको कंसीडर करना, है ना। लेट्स सेव वाटर, चलो पानी बचाते हैं। लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, चलिए ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। लेट्स एक्सरसाइज रेगुलरली, चलो रोज क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स वर्क एज अ टीम, चलो एक टीम की तरह काम करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, चलो इस प्रॉब्लम को साथ में। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तब टुगेदर की
टुगेदर आपको लगाने की जरूरत भी नहीं, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब हम क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, साथ में वो आपने ऐड कर दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट अगर आप इतना भी बोलोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। लेट्स मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, चलो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं, दैट इज मस्ट, दैट इज मस्ट। आई ऑलवेज से दिस लाइन कि ये तो ना अपनी जिंदगी का एम बना लो आप, है ना। लेट्स स्टे पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव रहते हैं। हाँ, ये वर्ड पॉजिटिव ये बहुत डराता है मुझे आजकल, है ना। हाँ, आप होगी मैम कैसी बात करें, सच में भाई जब से कोविड आया है ना, मतलब पॉजिटिव होना एक नेगेटिव क्वालिटी हो गई है ना। तो पॉजिटिव मतलब अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, है ना, बट दैट वे पॉजिटिव नहीं भैया, है ना। लेट्स डू आवर बेस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज़ में अपना बेस्ट करते हैं, हर काम में अपना बेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस लेट्स के मैं आपके लिए लेकर आई, एक बार मैं दोबारा से इनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। So let's wake up early tomorrow. Let's go to school on time. Let's complete our homework. Let's read a new book. No, not this way. Let me speak for you and you have to repeat after me. ठीक है, I'll give a pause. Then you'll have to repeat. इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, you'll be habitual. Gradually, you'll be fluent while speaking. Okay, so let's wake up early tomorrow. Next, let's go to school on time. Another one, let's complete our homework. Let's read a new book. Let's practice English every day. Let's help our classmates. Let's keep our classroom clean. Let's listen to our teacher carefully. Let's participate in the competition. Let's play after finishing our work. Let's learn something new today. Let's be kind to everyone. Let's save water. Let's plant more trees. Let's exercise regularly. Let's work as a team. Let's solve this problem together. Let's make our parents proud. Let's stay positive. Let's do our best in everything. So that's it. These were the 20 sentences. I hope you repeat it after me, and if not, just go back and replay the video and just repeat them. Okay, jitna aap bologe na beta, you'll get fluent. Okay, now what is next? Now we'll be speaking this paragraph, okay, while using let's. Let's make every day productive and meaningful. I just made this paragraph by using those 20 sentences we just spoke, है ना, जो हमने अभी बोले हैं उन्हीं को यूज करके मैंने ये पैराग्राफ बनाया है. सो यू ऑल्सो हैव टू स्पीक इट इन अ लाउडर वॉइस. यू नो, जब हम पढ़ते हैं एक ही होता है कि यू आर रीडिंग इन योर माइंड. नो, दैट वॉन्ट वर्क. यू हैव टू स्पीक. Until and unless you speak, you won't be able to improve your fluency. That is, I am telling you out my experience. So you have to speak. It's maybe wrong. What's the problem? Let it be. But
speak. Okay, so let's make every day productive and meaningful. चलो अपने दिन को, हर दिन को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाते हैं. प्रोडक्टिव क्या होता है बेटा? प्रोडक्टिव मीन्स आप उसको यूज कर रहे हो, यू आर नॉट वेस्टिंग दैट डे. तो अपने हर दिन को यूजफुल और मीनिंगफुल बनाते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते हैं. लेट्स वेक अप अर्ली, go to school on time and complete our homework regularly. चलो टाइम से उठते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं और अपने होमवर्क को टाइम से कंप्लीट करते हैं. Let's listen carefully in class, help our classmates and keep our surroundings clean. क्लास में जो भी होता है उसको ध्यान से सुनते हैं, अपने क्लासमेट्स की हेल्प करते हैं और अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के वातावरण को क्या करते हैं? साफ सुथरा रखते हैं. लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे एंड लर्न समथिंग न्यू. डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और रोज कुछ नया सीखते हैं. लेट्स वर्क हार्ड, stay positive and do our best in everything we do. चलिए मेहनत करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और हर काम में अपना बेस्ट पॉसिबल करते हैं. ठीक है, वो पॉजिटिव को थोड़ा सा पॉजिटिव ही रखना. ठीक है, बाय फॉलोइंग दीज हैबिट्स वी कैन बिकम बेटर स्टूडेंट्स एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. ये सारी हैबिट्स को फॉलो करके, इन सारी हैबिट्स को यूज करके हम एक अच्छे स्टूडेंट और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं. ठीक है, नाउ आई हैव रेड दिस पैराग्राफ फॉर यू. वंस अगेन आई रीड इट एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. ओके, नो चीटिंग, यू हैव टू रिपीट. ओके, चलिए. Let's make every day productive and meaningful. Let's wake up early, go to school on time, and complete our homework regularly. Let's listen carefully in class, help our classmates, and keep our surroundings clean. Let's practice English every day and learn something new. Let's work hard, stay positive, and do our best in everything we do. By following these habits, we can become better students and responsible citizens. Very good, very nice. So once again, just repeat them. Okay, जितनी बार इनको आप पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे. Okay, so try to read them again and again, no issues. Read them loud. Let's make every day productive and meaningful. उससे क्या होगा? फ्लुएंसी भी बढ़ेगी and you'll get habitual of speaking. Okay, चलिए. Now what is next? Question time. What questions would you like to ask me? आज का हमारा टॉपिक था क्या? लेट्स. ठीक है, सो लेट्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में, और किसी भी टॉपिक के बारे में इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन इन योर माइंड, जस्ट लेट मी नो. ओके, सो दिस इज योर राइट टू नो, है ना. चलिए, नाउ we are going to have a great learning together. Thank you. I hope you all are improving by the help of these videos, by the help of this
English spoken series. So one thing I would say, keep growing, keep learning. आप सब कुछ कर सकते हो, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, है ना. हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. दैट वर्ड इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. यू नो वेरी वेल, है ना. तो you all are great, you all have potential, you all have caliber, you all are genius. There is nothing in the world which can stop you. So be unstoppable, है ना. I'm unstoppable, right? So be like that, achieve your goal, make your parents proud, keep smiling, okay, and keep learning as well. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी. टिल देन खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.